Okay, let's start. Very good morning to everyone. Uh, Before I start, there are very less number of students who are playing the game. Let me show you the dashboard. So it's my request to you to please play the games. Fine. You can see this is the dashboard of a Chambord student. I'll be showing you of all the centers. Now there are 104 students of Foundation Builder. Let me 10th standard. Fine. Huh. So very less number of students are active. This is 6 students are inactive. So it's my request to you to play the game. Step app. Satyak, Aryan, Abhishek, Samyak, Priya and Aryan. Right? 10th standard. Total 10, 13, chemistry 2, physics 2, science 2. My request to please be active on this. Fine. Daksha, Tanmay, Jha. You can see these are all the students who are playing the games. So जहां तक अभी 3 चैप्टर हुए हैं, ऑल 3 चैप्टर्स यू नीड टू प्ले. कौन कौन से चैप्टर्स प्ले करने हैं वो लिस्ट आपकी ग्रुप पे शेयर की जा चुकी है. इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम कॉन्टेक्ट मी. करेक्ट ना? सो इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज प्ले द गेम्स. लेट मी सी द अदर सेंटर्स आल्सो. जस्ट अ मिनट. Kharghar centers. I don't think so. Kharghar center students are in this A group. Let me check. Andheri. Out of 142 students, 27 students are inactive, 115 are active. So my request, those 42 students, please play the games. And you can see Anha, Dishita, these are the students who are continuously playing the games. So please play the maths game, complete करो. क्योंकि मेरे पास यहाँ लिस्ट है कौन नहीं खेल रहा है. ठीक है. Okay guys, so let's start. So last time we were quadratic inequality डिस्कस करी थी. उससे पहले let me I'll start that topic again. Don't worry. Let me first. This is a quadratic equation. Ax square
plus bx plus c equals to 0. Fine. If I say alpha and beta are roots of this equation, if I say alpha and beta are roots of this equation, that means if I substitute x equals to alpha in this equation, it should satisfy the equation. So it means a alpha square plus b alpha plus c must be equal to 0 if alpha is the root of this equation. Similarly for beta, if beta is the root, then a beta square plus b beta plus c must be equals to 0. So if this is given, if this is root, then this. Fine. इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है गाइस, करेक्ट ना? वाइस वर्सा कैसे हो जाएगा? इफ इट इज गिवन दैट ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0, यदि ये गिवन है, if this is given, that means that alpha and beta are roots. तो ये दोनों ध्यान रखना, कन्वर्स भी ट्रू है, ठीक है? तो क्या मैं इससे ये बोल सकता हूं क्या? सपोज इफ gamma is not the root, gamma is not the root, can I say that a gamma square plus b gamma plus c won't be equals to 0? ठीक है, अच्छा, वेरी गुड. नेक्स्ट है सपोज करो इसके दो फॉर्मूले हमने डिराइव करे थे. कौन कौन से फॉर्मूले डिराइव करे थे? लेट मी राइट द इक्वेशन. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसके दो रूट कौन कौन से आए थे? अल्फा बीटा. शॉर्ट पे कैसे लिखते हैं? एक साथ लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है, नो आई कैन नॉट रीस्टार्ट अगेन. देन आउट ऑफ प्लस आप एक ले लीजिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. दिस इज अल्फा. एक माइनस ले लीजिए, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ये स्टैंडर्ड नोटेशन स्टार्ट कर रहा हूं. मैं बोलूं व्हाट इज S1. S1 का मतलब है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम, है ना? ये 1 है ना, दैट इज वाई यहां पे 1 है. तो कौन कौन से रूट्स लोगे आप? अल्फा, एक बार में एक ही लेना है, दैट्स वाई अल्फा, फिर बीटा. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए इक्वल्स टू माइनस, इसको मैं क्या लिखूंगा? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. हाँ, विल कंटिन्यू विद दिस. दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग लेफ्ट. इसमें कुछ रह गया था, इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी. इसमें किसी को डाउट है? S1 में स्टैंडर्ड नोटेशन है,
ठीक है, अभी ध्यान से देखना क्योंकि मैं आगे फ्यूचर अभी सिर्फ क्वाड्रेटिक पे नहीं रुकूंगा। सपोज करो आई विल आस्क यू व्हाट इज S2, तो S2 की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट वुड बी सम ऑफ रूट्स taking how many at a time? Taking 2 at a time. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इट वुड बी अल्फा बीटा। कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि अल्फा बीटा बीटा अल्फा सेम होते हैं? डेफिनेट मत बोलना कि सर अल्फा बीटा और बीटा अल्फा। कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो अल्फा बीटा बीटा, इसको हम बेटा प्रोडक्ट भी बोलते हैं, अदरवाइज ऑल्सो नोन एज। तो कंफ्यूज मत हो जाना सर आप यहाँ सम बोल रहे हो यहाँ प्रोडक्ट बोल रहे हो। ध्यान से डेफिनेशन फोकस करो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल्स टू कितना? C बाय A इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x to power 0 that is constant term divided by coefficient of x square। अदरवाइज आप ऐसा लिख सकते हो, कांस्टेंट प्लस आएगा, सॉरी, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है? कोई डाउट? डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है। ठीक है, अभी मैं क्यूबिक का लिख रहा हूं। ठीक है, अभी मैं क्यूबिक का लिख रहा हूं, फिर 4th डिग्री का और 5th डिग्री का आपसे लिखाऊंगा। आई एम गोइंग टू राइट फॉर 3 डिग्री, नाउ 4 डिग्री एंड 5th डिग्री यू विल राइट। सो लेट मी थर्ड, मैं अभी क्यूबिक के लिख के बताता हूं आपको, तो प्लीज फोकस गाइस। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें x की पावर डिक्रीजिंग है। ठीक है, सपोज करो ये डिग्री 3 है ना बेटा, तो इसके 3 रूट होंगे। अज्यूम करो अल्फा बीटा और गामा। सो कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S1? Sum of the roots taking 1 at a time. So taking 1 at a time, alpha plus beta plus gamma, this would be equals to, ठीक है ना, ये क्या होगा? माइनस b बाय a। ऐसा ध्यान रखो, ये जो पावर होता है ना, ये ऑलवेज -1 की पावर में आता है। तो -1 की पावर 1, यहां 1 क्यों? क्योंकि यहां पे 1 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ हमेशा एक पावर कम कर दो। क्यूबिक इक्वेशन है ना, क्यूबिक इक्वेशन है, और आप 1 ले रहे हो तो 3 - 1 करो। सपोज करो आप यहां 2 ले रहे होते तो क्या करते? 3 - 2 करते। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। S1 बताए तो अभी सोते हो क्या यार आप लोग? आहान अब भी जस्ट बताया। व्हाट इज S1? सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम। What is S2? Sum of root taking 2 at a time. So it would be alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha। ठीक है ना, क्या आएगा ये? -1 की पावर 2, क्योंकि यहां 2 है। x की पावर, क्यूबिक इक्वेशन है ना, सो 3 - 2, क्योंकि आप 2 ले रहे हो तो क्या आएगा? क्या कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 1, क्योंकि ये 1 आया, डिवाइडेड बाय बॉटम पे हमेशा बेटा क्यूब आता है, x की पावर क्यूब का। तो ये कितना आ जाएगा? ये तो प्लस हो जाएगा, इट वुड बी c बाय a। है ना, so what would be S3? S3 would be अल्फा बीटा गामा। एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है,
-1/3 कोफिशिएंट ऑफ कौन सी पावर कर लूं, 3 - 3, क्योंकि यहां 3 है और क्यूबिक इक्वेशन है, दैट इज कांस्टेंट टर्म, दैट इज डी। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x⁴ डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, तो ये कितना आएगा -d/a। किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो बोलो, क्योंकि मैं अभी आपको 4 डिग्री का और 5 डिग्री का लिखने दूंगा। Any doubt in this? चलो, so let us now write, आप 4 डिग्री का मेरे को लिख के बताओ। ठीक है, आई एम राइटिंग द इक्वेशन नाउ, सो माय रिक्वेस्ट लिखो फटाफट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन गाइस, a(x⁴ प्लस b x³ प्लस c x² प्लस d x plus e is equals to 0. Tell me what is S1, what is S2, what is S3, what is S4? चारों के आंसर फटाफट बताओ, है ना। रूट्स आर अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। रूट्स आर अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। हाँ, ये सही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो -1 की पावर 1, तो ये हो जाएगा -b/a। वो तो मेरे को पता है, आप लोग सब लिख लोगे। ये भी एक्सप्रेशन चाहिए मेरे को। बहुत से बच्चे इसमें टर्म मिस कर देते हैं कि S2 का मतलब क्या, कितने बनेंगे, अल्फा बीटा प्लस, ये भी लिखो, उसके बाद फाइनल ये लिखो। कैसे चूज करोगे, पीएनसी यूज कर सकते हो। देखो 2 चाहिए, कितने में से, 4 में से, तो आंसर क्या आएगा 4C2। 4 है ना, 2 चाहिए, 4C2। 4C2 की वैल्यू कितनी होती है, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, 6। मतलब टोटल 6 टर्म बनेंगी। ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म बनाओ, अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, कोई भी टर्म मिस नहीं होनी चाहिए। देन बीटा गामा बीटा डेल्टा, कितने टर्म हो गए, 5 प्लस गामा डेल्टा। दैट्स इट गाइस, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। टोटल 6 टर्म्स। दिस वुड बी C/A। सिमिलरली S3 बनाओ, S3 में कितने बनेंगे, 4C3 विच इज इक्वल टू 4C1, 4, टोटल 4 टर्म बनेंगे। इट वुड बी अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा हो गया, अल्फा गामा डेल्टा हो गया, एक और कुछ रह गया, हर्षित एक और बनेगा। S3 में 4 बनेंगे, 4C3 आ रहा है। हाँ, अल्फा बीटा गामा हो गया, अल्फा बीटा डेल्टा रह गया। हाँ ठीक है, और लास्ट वाला अल्फा बीटा गामा डेल्टा एक ही बनेगा, है ना। 4C4 की वैल्यू 1 होती है, सो दैट इज E/A। किसी बच्चे को इसमें डाउट है, D/A C/A माइनस D/A E/A। S3 E/3 ए थोड़ा आएगा इसने, दादर S3 है, D/A आएगा माइनस D/A। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? अभी नेक्स्ट एक और लिख लो, 5 डिग्री का, सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट।
आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन ही नहीं होगा फिर। सपोज करो ए एक्स 5 डिग्री का लिख लो, बी एक्स 4, सी एक्स क्यूब, डी एक्स स्क्वायर, ई एक्स प्लस एफ इक्वल्स टू 0। अल्फा बीटा गामा डेल्टा और डब्लू ले लो, चलो ये इसके रूट्स हैं। S1 क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस डब्लू, दिस वुड बी इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। S2 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 5 है, 2 चूज करना है, तो 5C2। 5C2 कितना होता है? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, टोटल 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे बेटा, टोटल 10 टर्म आएंगी इसमें। तो लेट अस स्टार्ट विद अल्फा। अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, अल्फा डब्लू प्लस बीटा अल्फा हो चुका है, नाउ बीटा गामा, बीटा डेल्टा, बीटा डब्लू प्लस बीटा हो गया, गैमा बीटा हो चुका है, गैमा डेल्टा प्लस गैमा ओमेगा, गैमा बीटा हो चुका है, डेल्टा गैमा हो चुका है, डेल्टा गैमा कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are the 10 terms. This is equals to what? C by A. What would be S3? कितने टर्म्स? तन्मय चौधरी, टर्म्स कितने बनेंगे? सिलेक्शन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन क्लास 9th में पढ़ा है, इतना बेसिक हमने। तीन के बनाने हैं, 5 में से कितने बनेंगे? 5C3 विच इज इक्वल टू 5C2, 10 ही बनेंगे। ठीक है, तो यहां 10 टर्म लिख लेना, कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? माइनस डी बाय ए। सिमिलरली S4, टेकिंग 4 एट अ टाइम, ये क्या हो जाएगा? E बाय ए। लास्ट S5, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, दिस वुड बी माइनस F बाय ए। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट गाइस, क्वाड्रेटिक में ही है। सपोज करो ये इक्वेशन है, ठीक है, इसमें से मैं ए कॉमन ले सकता हूं, so I can write this, ठीक है। व्हाट इज दिस? अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, सो बी बाय ए कितना हो जाएगा? बी बाय ए कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? सी बाय ए। तो यहां पुट कर दो वैल्यूज, क्या हो जाएगा? इट वुड बी ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये बी बाय ए की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, ठीक है, और सी बाय ए को प्लस अल्फा बीटा। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, इट कुड बी रिटन एज एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है, तो इन शॉर्ट दिस एक्सप्रेशन है ना, इट कुड बी रिटन एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये ध्यान रखना गाइस, that every quadratic expression can be written as a product of two factor. This is factor, this is factor। क्या a factor है क्या? It is not a factor, it is a constant।
ठीक है, इट इज अ कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, है ना। आपको सपोज करो रूट दिया है, इसमें लिख देता हूं, ठीक है। आपको सपोज बोला है रूट के, आपको कोई रूट दे दिया है, अल्फा और बीटा रूट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस s1x प्लस s2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट क्या है? अल्फा बीटा। S1 आपको पता है ऑलरेडी, अल्फा प्लस बीटा, S2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो सपोज करो मैं बोलूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट 1 और 2 हैं, तो वो बनाओ। तो S1 निकालोगे, S1 वुड बी 1 + 2, दैट इज 3। फिर S2 निकालोगे, दैट इज 1 × 2, दैट इज 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी? x² माइनस S1 दैट इज 3x प्लस 2। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 1 और 2 हैं। इसमें किसी को डाउट है कि यदि आपको रूट्स पता हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो? इफ यू डू नो द रूट्स यू कैन मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो तो इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी करना, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर roots of equation x² minus px plus q equals to 0, then you need to find the equation, find the quadratic equation whose roots are first alpha square beta square, second alpha cube beta cube, third alpha square, sorry, it's alpha plus 2 beta plus 2, it's not square, ठीक है। फोर्थ अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर। तो टोटल 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चारों के मेरे को आंसर दे दो, ठीक है। इट वुड बी, थर्ड वुड बी अल्फा प्लस 2। चलो आई गिव यू 10 मिनट टू सॉल्व, करो। पी बाय क्यू फॉर्म में ही आएंगे। आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू, देयर शुड बी नो अल्फा। अल्फा नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी, सब पी एंड क्यू के फॉर्म में आना चाहिए, पी क्यू एंड एक्स, दैट्स इट।
रॉन्ग है दक्षा। करेक्ट है हर्षित। बीटा कहाँ आएगा? तन्मय चौधरी दादर, मैंने बोला ना मेरे को अल्फा बीटा चाहिए ही नहीं। करूंगा एक्सप्लेन। तन्मय जा करेक्ट है। करेक्ट है अनन्या। लेट एवरीवन ट्राई, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं करूंगा। ए की वैल्यू 1 है अभिनव, ध्यान से देखो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए 1 है। करेक्ट है अहमद। दक्षा करेक्ट है। जयेंद्र करेक्ट है। जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है किसको समझ में नहीं आया?
करेक्ट है। माइनस पी एक्स आएगा दक्षा। सेकंड वाला करेक्ट है जयेंद्र। पहले का आंसर मैंने लिख दिया ऑलरेडी, चेक करो। एक मैंने करके बता दिया, बाकी सब आपको ट्राई मारने हैं। माइनस आएगा एक्स का टर्म। अहमद माइनस आएगा। भी माइनस आएगा। करेक्ट है थर्ड। अच्छा
आंसर लिख दिए, जो भी नहीं आया वो बोलो। Can I give you next question, guys? If all you have done with this, फोर्थ में डाउट है? समझ में आया? समझ समझ में आ रहा है कि नहीं? S1 फाइंड करना है, S2 फाइंड करना है, सिंपल डालना है। अरे माइनस बी बाई ए है ना बेटा, माइनस पी का है आंधी, ये माइनस पी है, माइनस माइनस प्लस। अभी किसमें डाउट है? फोर्थ वाला मैंने सॉल्व करके बता दिया। थर्ड वाले में क्या है यार? सिंपल सा, S1 निकालो, क्या आएगा जल्दी बताओ। जो थर्ड पूछ रहा है मेरे को, S1 क्या आएगा जल्दी बताओ। व्हाट वुड बी S1? अथर्व, जल्दी थर्ड बार में S1 बताओ क्या आएगा। अरे दोनों को ऐड कर दो ना, कैसा करते हो? सिंपल ऐड करो दोनों को, क्या आएगा? ऐड करते नहीं आ रहा आपको इन दोनों को? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, ये कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है पी, तो कितना आ गया? पी प्लस 4। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा S2 निकाल लो, वैल्यू डाल दो। इतना इजी तो है गाइस, इसमें थोड़ा कोई कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। if P and Q are the roots of x square plus px plus q equal to 0, then find p, all values।
करो। वैल्यू आएंगी, दो आएंगी, सिर्फ एक आएगी। यस, टू वैल्यूज आर करेक्ट। कौन कौन सी टू वैल्यूज है वो बताओ बस। टेस्ट नया आंसर न्यूमेरिकल आएगा आहान, क्योंकि टर्म्स मत दो। हाँ, आंसर इज 0 एंड 1। 0 एंड 1, ठीक है। S1 लिखते हैं। व्हाट इज S1? S1 इज P प्लस Q। P और Q रूट्स है ना। This would be equal to minus B by A. So this would be equals to what? Minus P। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? You got it what? S2 क्या रहेगा? S2 would be P into Q। It would be Q। अब बहुत से बच्चों ने यहाँ कैंसिल कर दिया होगा, तो उनको P सीधा 1 मिल जाएगा। ऐसा नहीं करना है, यू नीड टू ब्रिंग इट टू दिस साइड। क्या आएगा ये? पी क्यू माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। कॉमन लो, P माइनस 1 Q। ठीक है, सो इधर P इक्वल्स टू 1 और Q इक्वल्स टू 0। Q 0 होगा तो P भी 0 हो जाएगा। सो इधर P इज इक्वल्स टू 1 और P इक्वल टू 0। समझ में आया? ऐसा कैंसिल नहीं करना, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, सीधा कैंसिल कर देते हैं। इसको लॉस ऑफ रूट बोलते हैं। लॉस ऑफ रूट। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछूं कि ये इक्वेशन देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। एक्स कॉमन ले लूं
तो x-2 x-2 बच्चा ऐसा सीधा काट देंगे और बोलेंगे x इक्वल्स टू 1 आंसर। रॉन्ग वे, इसको काटो मत, इसको एलएचएस में लेके आओ। तो क्या बन जाएगा ये? इट वुड बी x x-2 माइनस x-2 इक्वल टू 0। अभी x-2 कॉमन लो, इट वुड बी x-2 इंटू x-1 इक्वल्स टू 0। सो 2 and 1, आपने जब ये कट किया तो आपने ये रूट लॉस कर दिया। सिमिलरली लाइक दिस यहां पे अंडरस्टूड? एनी डाउट इन दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अरे दो प्रोडक्ट का नंबर 0 है। आन आप कहा, मतलब पीछे कहां चले जाते हो? व्हाई डोंट यू फॉलो मी? ये दो प्रोडक्ट का नंबर 0 है, तो एक ये 0 होगा, एक ये 0 होगा। हाँ, तो Q इक्वल टू -2p है ना, तो P की वैल्यू 0 डालो, कितनी आती है? Q की वैल्यू 0 डालो, 1 माइनस P is a root of x square plus px. Yes, we should never. 1 minus p equal to 0. Fine. Then find p. करो। करेक्ट है अर्पिता? P is equals to 1 is the correct answer. दो तरीके से कर सकते हो, या तो सीधा ये रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना गाइस, इसमें डाल दो। सो इट वुड बी 1 माइनस पी होल स्क्वायर प्लस पी 1 माइनस पी प्लस 1 माइनस पी। रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। मैंने क्या किया, x इक्वल टू 1 बाई माइनस पी डाल दिया, क्योंकि रूट है। को सिंप्लीफाई करो, इट वुड बी 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p
पी को अंदर मल्टीप्लाई करो, p माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी इक्वल्स टू 0। अभी पी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये p और ये p कैंसिल आउट, दिस इज 1 प्लस 1 2 माइनस 2p इक्वल्स टू 0, so p is equals to 1. This is method number 1. ठीक है, सेकंड मेथड अपना वो अल्फा बीटा वाला। ठीक है, लेट्स अल्फा एक रूट है दैट इज 1 माइनस पी। ठीक है, दूसरा रूट बीटा अज्यूम कर लो, दोनों का सम क्या हो जाएगा, है ना। सो 1 माइनस पी प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, माइनस बी क्या है यहाँ पे पी, सो इट इज माइनस पी कैंसिल आउट, तो दूसरा रूट बेटा -1 आ गया, अनदर रूट -1 आ गया, प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1 माइनस पी इंटू -1, है ना। ये कितना आएगा, p -1, दिस इज c बाय a, c क्या है 1 माइनस p, so it is 2p equals to 2, p equals to 1. So this is method number 2. Understood? Next, ध्यान से देखना गाइस, ये इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस, to find the number of roots. देखो, some of you have gave the correct answer, Harshit from Kalyan, the answer is 0. कई बच्चे क्या कर रहे होंगे, इसको और इसको कैंसिल कर रहे होंगे और x इक्वल टू 1 ला रहे होंगे। अभी ध्यान रखना गाइस, ये हमेशा ध्यान रखो, जो भी सॉल्यूशन आएगा, बी एक्स्ट्रा केयरफुल, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो ओरिजिनल इक्वेशन को, मॉडिफाइड नहीं, ओरिजिनल इक्वेशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करना चाहिए। सो लेट अस पुट x इक्वल टू 1, दिस क्या बनेगा, 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1 शुड बी इक्वल्स टू 1 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1, ये क्या बन जाएगा, इंफिनिटी, ये भी क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। सो इज इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी, वी डोंट नो। हो सकता, ठीक है, इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, हो सकता है ये इंफिनिटी इससे बड़ा हो सकता है ये इससे छोटा हो, सो देयर इज नो रूट। सो ऑलवेज बी केयरफुल, whenever you find the solution, always cross check it by putting into the original equation.
Understood? Next question, guys. Next question is a upon x minus a plus b upon x minus b is equals to 1 if the two roots are equal in magnitude and opposite in sign. If two roots of this above equation are equal in magnitude but opposite in sign, then find a plus b. Then find a plus b. चलो करो. करेक्ट है तन्मय चौधरी. यस स्नेहा करेक्ट है. करेक्ट है. दीप्तांशु उपाध्याय रॉन्ग है. तन्मय झा करेक्ट है. इसको सिंप्लीफाई करो गाइस. तो ये वाला ब्रैकेट यहां मल्टीप्लाई होगा, ये यहां होगा, ये आपस में होंगे. तो ये ऐसा बनेगा a x माइनस बी प्लस बी x माइनस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू x माइनस बी इज इक्वल्स टू 1. मल्टीप्लाई करो. It would be ax minus ab plus bx minus ab. ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इस साइड जाएगा. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी. इनको रीअरेंज करो. यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 a प्लस बी एक्स प्लस 3ab इक्वल्स टू 0. अब रूट अपोजिट साइन में और इक्वल है तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है साइन. तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा अल्फा माइनस अल्फा दैट इज 0. सम ऑफ रूट क्या होता है b बाय a. तो b यहाँ पे ये पूरा है. सो इट इज 2a प्लस b. दिस इज capital B divided by A 1. This should be equals to sum of roots which is 0. So A plus B is equals to 0. Understood? अच्छा गाइस
एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, सीख लो, बहुत काम आएगी। ठीक है, सपोज करो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इसके जो कोफिशिएंट है ना गाइस, कोफिशिएंट, ये वाला कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट, ये साइक्लिक टर्म है ना, ए बी सी, देखो ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, देखो ना, b माइनस सी तो b माइनस सी, सी माइनस ए तो सी माइनस ए माइनस बी तो ए माइनस बी। तो जब भी ये साइक्लिक आपको मिलते हैं, है ना, तो ऑलवेज चेक, है ना, कि इनका सम 0 आ रहा है कि नहीं। ऐड करो जरा, क्या आएगा, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब मैं x इक्वल टू 1 डालू तो क्या ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा, इफ आई पुट x इक्वल टू 1 1, मेरे को ये इक्वेशन मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये 0 होगा। तो कैन आई से दैट x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, कैन आई से x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ, तो याद रखना, जब भी साइक्लिक मिले आपको, whenever you get a cyclic, है ना, क्योंकि आप इसको नॉर्मल तरीके से करने जाओगे तो बहुत बड़ा जाएगा। सो x इज इक्वल टू 1 यूजली दी रूट, क्यों, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो ये ट्रिक है, आपको क्वेश्चंस में यूज होगी। ओके गाइस, अभी लेट मी स्टार्ट, 15 मिनट बचे हैं, छोटा सा टॉपिक ले लेता हूं। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आएंगे, छोटा सा टॉपिक ले लेता हूं गाइस। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, छोटा सा टॉपिक है, ले लेता हूं। इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी, जल्दी बताओ। 1, ठीक है, तो इक्वेशन अभी x क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है, तो हम जनरली x इक्वल टू 1 करके छोड़ देते थे, बट अभी हमें पता है पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का, ये 3, तो इसके 3 रूट्स आएंगे। ठीक है, लेट अस फाइंड द अदर 2 रूट्स। तो ये बनेगा x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला लगाओ a क्यूब माइनस b क्यूब का, इट इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जब ये 0 होगा तो x इक्वल्स टू 1 आएगा, ये होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, इट वुड बी x माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 रूट 3 आयोटा, देयर आयोटा इज व्हाट, रूट ऑफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? हाँ, अभी देखो इसमें से ना एक बार प्लस ले लो, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, इस प्लस वाले को आप ओमेगा बोलोगे, तो दूसरा वाला, ये ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है, ग्रीक लेटर, फाइन। दूसरा वाला माइनस 1 माइनस रूट 3 आयोटा
बाय 2, ये जो है ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इसका स्क्वायर करके देखो यही मिलेगा, इसका स्क्वायर करें, चलो स्क्वायर करते हैं इसका। ये क्या आएगा, -1 प्लस √3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्क्वायर 4, इसको ओपन करो, -1 का स्क्वायर 1, √3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू 1 इंटू √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। देखो आयोटा 1 है तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है गाइस, जल्दी बताओ, इट वुड बी -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है, तो इट वुड बी -3, √3 का स्क्वायर 3, सो 1 - 3 -2 √3 आयोटा बाय 4, जिसको सिंप्लीफाई करोगे 2 कॉमन लेके कटेगा, तो इट वुड बी 1 - √3 आयोटा बाय 2, तो ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, ठीक है। यदि आप इसको ओमेगा मानोगे माइनस वाले को, तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये ध्यान रखना, इट डजंट मैटर, if you assume one omega the another one is omega square automatically। कोई डाउट है? अच्छा, ये प्रॉपर्टीज देख लो बेटा, आयोटा की प्रॉपर्टीज, आयोटा √-1 आयोटा, आयोटा क्यूब कितना होगा जल्दी बताओ, व्हाट वुड बी आयोटा क्यूब, इट वुड बी माइनस आयोटा, हाँ, व्हाट वुड बी आयोटा टू पावर 4, इट वुड बी 1, ठीक है, तो ये 4 का साइकिल चलता है बेटा आयोटा में, ठीक है, तो जल्दी से बताओ मेरे को, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ आयोटा टू पावर 4n + 3, जल्दी बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, द वैल्यू ऑफ, हाँ, माइनस आयोटा, इसको कैसे लिखोगे आप, यूजिंग द लॉज ऑफ फ्रैक्शन, जस्ट एक्सपोनेंट आयोटा टू पावर 4n इंटू आयोटा टू पावर 3, ये 4n तो ऑलवेज 1 रहेगा, बचा आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो द आंसर इज माइनस आयोटा, ठीक है। अच्छा, जल्दी से सिंप्लीफाई करके बताओ, सिंप्लीफाई दिस गाय, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, हाँ, प्लस आयोटा क्यूब डैश 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 प्लस आयोटा की पावर 99, ये कितना आएगा जल्दी बताओ, नहीं, कितनी टर्म है, जीपी है, पहला टर्म 1 है, हाँ हाँ करेक्ट है, पहला टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 100, लगाओ फॉर्मूला, ये क्या आएगा 1 - r आयोटा की पावर 100 डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा, ये कितना आएगा, आयोटा की पावर 100 ना, आयोटा की पावर 100 कितना होगा 1, सो 1 - 1, नीचे 1 - आयोटा 0, so the answer this simplifies into 0, समझ में आया, अंडरस्टूड, नेक्स्ट, अभी ध्यान से देखना गाइस, ये इक्वेशन थी हमारी ओरिजिनली, x³ - 1 = 0, इसके हमको 3 रूट मिले, कौन कौन से रूट है जल्दी बताओ,
1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दीज थ्री आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं ऐसे रीअरेंज करके लिख रहा हूं, ओमेगा क्यूब प्लस 0 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट वुड बी S1, जल्दी बताओ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा? 0। तो ये आइडेंटिटी है, ये ध्यान रखना। सेकंड S3 क्या आएगा? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 1, so ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। S2 नहीं S3 लिया है। ये दो आइडेंटिटीज याद रहेंगी। ठीक है, आइडेंटिटीज याद हैं तो जल्दी से बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा टू पावर 89? जल्दी बताओ। ये 3 की साइक्लिसिटी यूज करो, 3 की साइक्लिसिटी वाला, ये जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ। यस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए ही है, हर किसी की जनरल आइडेंटिटी नहीं है। नहीं, ओमेगा स्क्वायर करेक्ट। इसको नियरेस्ट 3 के पावर लेके जाओ ना, क्या लिखोगे? ओमेगा की पावर 87 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये 3 की पावर में कितना बनता है? 29, करेक्ट ना? की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 1 होगा। ओमेगा क्यूब, इसको ऐसा लिख सकते हो ना, ओमेगा क्यूब की पावर 29 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर इज ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? नेक्स्ट, given that omega and omega rate are the cube root of unity, you need to simplify this. इसको सिंप्लीफाई करो। given that omega and omega square, these are cube root of unity, simplify this. वो दो ही आइडेंटिटी यूज होंगी तो लिखी थी अभी। क्या समझ में नहीं आया? बोलो नमन। नहीं आनवी, रॉन्ग है। खुशी, रॉन्ग है। नहीं कृष्णा, रॉन्ग है। प्लस आएगा तन्मय चौधरी।
माइनस नहीं आएगा, साइन चेक करो। तन्मय चौधरी दादर, हाँ अभी करेक्ट है। नहीं, रॉन्ग है। अरे देखो ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी बताओ। यहां से इट वुड बी माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यूजिंग दिस यहां पुट कर दो, तो माइनस ओमेगा, इट वुड बी माइनस 2 ओमेगा टू पावर 5। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू पावर 5। अभी माइनस 2 टू पावर 5 दैट इज माइनस 32 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। ओमेगा की पावर 5 ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, इट वुड बी ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा। यूजिंग दिस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यूजिंग दिस -1। सो -32 इंटू -1 इक्वल्स टू 32। अंडरस्टूड? लास्ट स्टेप ये वाला। अरे आप लोग कंफ्यूज कैसे होते हो, ओमेगा की 5 को क्या लिखोगे, यू विल राइट ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट नहीं आते क्या, इसको ऐसा ब्रेक नहीं कर सकते क्या? ये 1 हो गया ना, ये ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर। हाँ करेक्ट, जयेंद्र सेम है। You can do that way also. ठीक है guys, so we'll continue from here only, next class onward. चलो, thank you for active participation.